Hello students, in today's video lecture we will talk about the diarrhea. As we have covered the constipation and the next topic is diarrhea, we will cover the topic of diarrhea by defining the diarrhea, what is the exact definition of diarrhea and what are the regions, means we can say what are the pathological changes in the digestive system that is responsible for condition like diarrhea. And we will also talk about what is the relevant pathophysiology. What is the relevant pathophysiology means we will talk about at the pharmacological level how the different kinds of cell of the GIT lumen, especially we talk about the villus cell and the crypt cell, that how these cells are responsible, how the modulation in the function of these cells is responsible for diarrhea. And after that we will talk about how the certain bacteria or the virus are responsible for diarrhea and what are the changes that occur after the infection of bacteria or viruses in the GIT lumen, and that changes is responsible for diarrhea. So we will talk all the things in detail. First here we will start from defining the diarrhea. So normally the diarrhea is a passing of fluid in a fecal matter, or you can say there will be the passing of thin fecal matter, means we can say the too frequent. देखिए passing of the fluid like fecal matter is not a diarrhea, but the frequency also matters. Means अगर हम बोलेंगे कि वो watery जो fecal matter है, तो formed stool जो है वो poorly formed है, स्टूल का पूरा जो फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाया, उसकी वजह से उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा है. इट मींस हम उससे कह सकते हैं कि जो स्टूल में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना था वो नहीं हो पाया. उस वजह से स्टूल में वाटर का कंटेंट ज्यादा होने की वजह से वो स्टूल सॉलिड ना होके सेमी सॉलिड ना होके वो किस तरह वाटरी स्टूल है. सो वी कैन से पुअरली फॉर्म्ड स्टूल. तो हम क्या बोलेंगे, पुअरली फॉर्म्ड स्टूल है प्लस उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. तो हम उसमें कंपेयर करके बताएंगे कि एक दिन में कितने बार अगर ये चीज होती है उसको हम बोलेंगे डायरिया की कंडीशन में. तो देखिए WHO ने बहुत ही क्लियर कट ब्यूटीफुल डिफाइन कर रखा है इसको. अगर हम बात करें टू फ्रीक्वेंट पुअरली फॉर्म्ड स्टूल, एक तो आप डायरिया को ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि टू फ्रीक्वेंट बार बार पुअरली फॉर्म्ड स्टूल का होना, उसको बोलते हैं हम डायरिया. एंड द WHO सपोर्ट्स दिस मैकेनिज्म बाय सेइंग दैट मोर देन और इक्वल टू 3, 3 बार या 3 से ज्यादा बार, 3 बार या 3 से ज्यादा बार अगर 24 घंटे के अंदर आप जाते हैं और वहां पे कंडीशन होती है वाटरी स्टूल की, तो अगर वाटरी स्टूल की कंडीशन 24 घंटे के अंदर 3 बार या 3 से ज्यादा बार होती है, उसको हम बोलते हैं कि यू आर अंडर डायरिया, यू आर इन द डायरिया लाइक कंडीशन. सो वेरी सिंपल, द डायरिया इज वेरी क्लियर. टू फ्रीक्वेंट और पुअरली फॉर्म्ड स्टूल एंड मोर देन और इक्वल टू 3 times if you will go for the toilet and within 24 hours. So this is the definition of WHO. So this is very simple. Now we will relate how the stool is not formed properly. What are the various changes in the GIT lumen that is responsible for the formation of poorly formed stool. So now we will talk about what are the pathological regions. वो GIT ल्यूमेंस के अंदर कौन से रीजन है जिनकी वजह से जो स्टूल है उसका फॉर्मेशन उसका पुअर फॉर्मेशन है, पुअर फॉर्म्ड स्टूल है और उस स्टूल में वाटर का कंटेंट ज्यादा है. तो देखिए बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है इसका. अगर हम इस तरीके से बात करें, सो लेट्स सपोज दिस इज द GIT ल्यूमेन, दिस इज द GIT ल्यूमेन एंड this GIT lumen is responsible for, once there will be the food content, from the food content all the electrolyte and most of the water will absorb through the GIT lumen and the remaining part will go out from the body and that will say this is fecal matter. But once that
अगर एक सिंपल तरीके से डिफाइन करें, वंस व्हेन देयर इज अ नो एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, जब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में किसका, अगर हम बात करें लेट सपोज इलेक्ट्रोलाइट्स का, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स अपने साथ किस चीज को हुक किए होंगे, वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड किए होंगे। तो इफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिकम इनहिबिटेड ड्यू टू एनी रीजन, या तो वो किसी पंप्स के थ्रू उसकी वर्किंग इन्फ्लुएंस्ड है, या तो म्यूकोसल डैमेज है, उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं। उस वजह से अगर यहां पे फूड में जो इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट एब्जॉर्ब through the lumen and does not mix with the blood, then they will remain in the GIT lumen and passes with fecal matter, and that makes the fecal matter poorly formed, and that is the responsible for diarrhea like condition. Another mechanism, so first what we can say, the pathological region, in first region we say the less electrolyte and water absorption through the GIT lumen. I hope कि ये clear होगा. Now we will, after that, before discussing this, when we will talk about the relevant pathophysiology, then we will relate the molecular level of how the electrolyte and water absorption influence. हम उसको molecular level पे और conceptual उसको पढ़ेंगे। तो अभी की बात ये clear है कि electrolyte और water का absorption कम हो रहा, fecal matter के साथ आ रहा है, वो water stool को क्या बन रहा है, poorly formed. Now we will talk about the second condition may be that for responsible for diarrhea is that, as we know, in the GIT lumen there are special kinds of cell, and that cell is actually responsible for secreting the certain electrolytes, certain like chlorine, like potassium. So these, once they is actively secreted, the cells present in the lining of the GIT lumen are two types. One is responsible for absorption of electrolyte, one is responsible for secretion of electrolyte. So more and more secretion of electrolytes if it is possible. If your pathological condition is if the physiology of the GIT lumen is modulated in such a way that the secreting cell become activated, अगर वो GIT के ल्यूमन में जो सिक्रीटिंग सेल है वो एक्टिवेटेड हो गई, then they will release more and more electrolyte in the GIT lumen, and that also responsible for they allow these secreted electrolyte to mix with the fecal matter, and once there will be more and more electrolyte in the fecal matter, they hold along the water molecule, they ultimately result in the poorly formed stool and resulting in diarrhea. So second condition is that. Now we will talk about third condition. As we have discussed in the constipation, all the osmotic active agents, जो भी हमारे osmotic active agents होते थे, उसको अगर आप osmotic active जो कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, किस तरीके से GIT के ल्यूमेन में जाके वाटर को होल्ड करके रखते हैं, उस मैकेनिज्म को देखना है तो आप कॉन्स्टिपेशन की वीडियोस में जाके उतना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं. इन शॉर्ट, ऑस्मोटिक लोड अगर हम बढ़ाते हैं GIT ल्यूमेन का, if we increase the osmotic load of the GIT lumen, means if we increase the inorganic salts here, so that as we know the inorganic salt does not digest it, neither digested nor absorbed. तो अगर ये ना तो डाइजेस्ट होगा ना तो एब्जॉर्ब होगा, एंड बिकॉज इनऑर्गेनिक सॉल्ट ऑल्सो होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल, ज्यादा से ज्यादा दे विल अलाउ द वाटर मॉलिक्यूल टू कम ओवर देयर. ये ऑस्मोटिक एक्टिव कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके जो कि एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जो भी इलेक्ट्रोलाइट यहां से GIT ल्यूमेन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं जाएंगे, वो रिमेन कहां होंगे, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में. ये ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक है. तो ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड्स अगर प्रेजेंट हैं, या हम कह सकते हैं कि ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड होने की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल की अपनी तरह क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. दे विल लव टू अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल. तो दे विल अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया, फ्रॉम द ब्लड, एंड ultimately there will be increase in the blood water content in the GIT lumen, and that water content mixed with the fecal matter and make the fecal matter poorly formed. So this can be the another reason.
You can get the more detail of the osmotically active agent, how they are responsible for holding the water molecule. If you want to see the concept of that, you can go for the constipation video lecture. Now we will talk about the last region, that sometime the lumen of the GIT, the inner lumen, due to any pathological changes, it become inflamed due to any injury or due to any bacterial infection, viral infection, or any region. If the mucosal lining of the GIT become inflammatory, that is also responsible for exudation into the lumen. Means, let's suppose this is the GIT lumen, and this GIT lumen inside become inflamed due to bacterial, viral, or any kind of changes in the physiology. This become inflamed. So once they become inflamed, now this cell become thin, their thickness become thin, and from the matter that is present in the blood vessel around, that leaks in the GIT lumen and mix with the fecal matter. And the matter, once mixed with the fecal matter, ultimately responsible for poorly formed fecal matter, means ultimately diarrhea. So we have talked about the 4 regions, how the pathological regions, like less electrolyte and water absorption, because there is a specific cell that is responsible for absorption in the GIT lumen, that is called villus cell. So we will later on we will discuss in detail. If the secretion will be high, in the intestinal mucosa, that is also responsible for diarrhea, because more and more there will be secretion of ions, more and more water will be there. Along with that, more and more osmotic load will be there. It is also responsible for diarrhea, and more the inflammation in the mucosa is responsible for exudation of fluid from the vascular compartment to the intestinal lumen, and ultimately responsible for poorly formed stool. So these are the some regions. They are the direct region responsible for diarrhea, but something that is you can say the indirectly also influence or support, or you can say the add the condition like diarrhea to happen. What is that? Like if we talk about the hypermotility of the GIT lumen, because we know normally there will be a movement in the GIT that is called peristaltic movement, and that always in a forward direction, means towards from ileum to rectum. But if this become increased, hypermotility become increased, means if we, अगर हम डायग्राम से इसको पढ़ते हैं तो अगर हम बोलते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि मोटिलिटी की, जो हमारी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है उसको बढ़ाने से डायरिया की कंडीशन कैसी बनती है, जो कि अपने आप में एक सपोर्टिव रीजन है. डायरेक्ट रीजंस आपके 4 हैं. तो लेट सपोज दिस इज GIT lumen. अब हमने बात की, नाउ वी आर सेइंग दैट द मोटिलिटी ऑफ द इंक्रीज्ड मोटिलिटी ऑफ द GIT lumen इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशन लाइक डायरिया. So what is the pharmacological mechanism? What will be the pharmacological mechanism? Let's suppose there is a food content, and that food content once move forward slowly, parallelly there will be the absorption of essential nutrients from the fecal matter towards the vascular compartment through the GIT lumen. But if the, तो इस ये पॉसिबल कब है? जब ये इस पर्टिकुलर पार्ट पे धीरे धीरे होके नीचे आए. लेकिन अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट है तो उसको वो टाइम नहीं मिलेगा जिससे GIT lumen के सेल्स इसको एब्जॉर्ब कर पाए न्यूट्रिएंट को, क्योंकि because of hypermotility this food content will fastly move in a forward direction. जितना ज्यादा फास्ट मूव करेगा इन टुवर्ड्स द रेक्टम, एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम कम मिलेगा, और जब एब्जॉर्प्शन के लिए टाइम कम मिलेगा तो हम टेक्निकली इसको रिलेट कर सकते हैं कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड फूड विल बी लेस. तो सेम कंडीशन बनेगी कि इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का एब्जॉर्प्शन अगर कम हो रहा है देन दे विल क्रिएट लाइक कंडीशन ऑफ डायरिया. तो आप किसी भी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि पैथोलॉजिकल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं डायरिया के. नाउ वी विल टॉक अबाउट एट द मोलिकुलर लेवल, वी विल डिस्कस द व्हाट आर द स्पेशल सेल्स, what are the special cells present on the GIT lumen and responsible for absorption of the electrolytes and the water
and also responsible for secretion. So look, there are two kinds of cell. Through the small intestine there are finger like projections, and that projections are called villi. Normally if we talk about one cell, that is villus cell, and villus cells is responsible for absorption of electrolyte in the small intestine, right? तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि villus cell throughout present in the small intestine and responsible for absorption of electrolyte. Number 2, along the villus cell at the curve, let's suppose this is villus cell. Let's suppose this is villus cell. So how this is villus cell, this is and this is villus cell. But when we talk about these groups that are inside, these are villus cell, but these groups that are inside means this is called crypt cell. They are actively villus cell, they are actively responsible for absorption of what? Absorption of electrolyte and water from the lumen towards the vascular compartment. And these crypt cell that are presented in the crypt between the villus cell, that cells are responsible for active secretions. मीन्स ये क्या करेंगी? एक्टिव सिक्रीशन करेंगी. कहां पे? इन द जीआईटी ल्यूमेन. ये इन द जीआईटी ल्यूमेन एक्टिव सिक्रीशन करेंगी और ये जीआईटी ल्यूमेन से एब्जॉर्प्शन करेंगी. तो देखिए अब बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, इसको आप टेक्निकली कैसे जोड़ सकते हैं. Now we will discuss the relevant pathophysiology. As we have discussed, the villus cell is responsible for absorptive mechanism, and the crypt cell here I represented is responsible for the secretory mechanism. Now this absorptive mechanism, this is representing there is a lumen, right? In the relevant pathophysiology, downside there is a lumen, and this lumen, from the lumen there will be due to the presence of this villus cell, there is a sodium glucose transporter, or you can say the symporter. One molecule of sodium is uptaken and this glucose molecule is uptaken. There is also representing the sodium amino acid symporter. Sodium molecule parallelly hook the one molecule of amino acid, and same here is the sodium chloride symport. Sodium chloride symport in a same direction towards the vascular compartment. And how the gradients develop to perform these mechanism. अब कौन सा ऐसा ग्रेडियंट सेल के अंदर हो रहा है जो कि ये डेवलप कर रहा है कि ये सेल विलस सेल आसानी से ल्यूमेन में प्रेजेंट है. अगर ये ल्यूमेन है, अगर हम ल्यूमेन की बात, इंटेस्टाइनल ल्यूमेन की, तो जो बीच का पार्ट है वो ये है, और ये सेल्स किस तरीके से ल्यूमेन से हुक कर रही है इलेक्ट्रोलाइट्स को. तो हुक किस तरीके से कर रही है? बिकॉज इनसाइड द सेल देयर इज अ ग्रेडियंट, and that gradient is specifically generated by a special pump that is mediated by the ATP called sodium potassium ATPase pump. This sodium potassium ATPase pump that makes a gradient in the villus cell which is absorptive in nature. This sodium potassium ATPase pump allow these symport to take the sodium, glucose, amino acid and the chloride from the lumen to the inside. ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन जब कभी आप इस असेंबली को डिस्टर्ब कर दें, या लेट सपोज देयर आर सर्टेन बैक्टीरियाज और वायरसेस, दैट बैक्टीरियाज एंड वायरसेस, इफ आई एम सेइंग दैट बैक्टीरियाज और वायरसेस creates a condition like what? Diarrhea. And I am saying this virus stop this sodium potassium ATPase pump, it means I am saying कि now there will not be the uptake of sodium, amino acid and chloride from the intestinal lumen to the villus cell. तो अब क्या कंडीशन बनने वाली है? डायरिया की कंडीशन बनने वाली है. तो वो हम अलग से रिलेट करके अभी नेक्स्ट यहां पे डिस्कस करते हैं, लेकिन अब आपका आई होप कि बहुत सिंपल हो चुका है ये. तो इस तरीके से पंप्स होते हैं, लाइक क्लोराइड आयन मूव्स टुवर्ड्स द वैस्कुलर कंपार्टमेंट, पोटेशियम आयन के लिए चैनल्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप. सो दिस इज द विलस सेल एंड देयर इज अ रिप्रेजेंटिंग चैनल्स सिम्पोर्ट लाइक दिस. नाउ we will later discuss how the cyclic CMP is related. How did I मैंने यहां पे क्यों लिखा है इस चीज को, ये अभी मैं रिलेट करके बताता हूं.
Now, in a same way as these cells, villus cell responsible for active absorption, एक्टिव एब्जॉर्प्शन कह लें क्योंकि यहां पे एक्टिवली इन्वॉल्व है एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए. इन अ सेम वे दिस विलस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ व्हाट? बिकॉज सेम देयर इज अ ल्यूमेन, there is not sodium potassium ATPase pump, there will be sodium potassium 2 chloride symport as we studied in the diuretic chapters. So आपको उससे अभी कुछ ज्यादा उसमें सोचना नहीं है. सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सिम्पोर्ट्स ऑल्सो प्रेजेंट. ये जो पार्ट है, ये जो सेल्स का ये वाला पार्ट होता है टुवर्ड्स द वेस्कुलर कंपार्टमेंट, इसको हम बोलते हैं कौन सा? बेसोलेटरल साइड. तो हम ये भी बोल सकते हैं टेक्निकली कि बेसोलेटरल साइड में आपके ये सब प्रेजेंट होते हैं, ये सब. सो इन द बेसोलेटरल साइड ऑफ द क्रिप्ट सेल, दिस इज क्रिप्ट सेल. इन द बेसोलेटरल साइड देयर इज क्रिप्ट सेल एंड दैट क्रिप्ट सेल there is a presence of sodium potassium 2 chloride and this takes the sodium potassium 2 chloride from the vascular compartment. There will be vascular compartment, takes the sodium potassium 2 chloride and they throw the sodium potassium chloride inside this crypt cell and this crypt cell is ultimately, उसकी molecular mechanism पे हम ज्यादा यहां पे बात नहीं करेंगे क्योंकि relevant हमारा यहां डायरिया से है. तो हम क्या बात करेंगे कि ये आयंस को क्या करेगी? एक्टिवली सिक्रीट करेगी, हुक करेगी कहां से? वेस्कुलर कंपार्टमेंट से. एंड थ्रू इट इनसाइड द क्रिप्ट सेल एंड फ्रॉम द क्रिप्ट सेल देयर विल बी द एक्टिव सिक्रीशन ऑफ मेनली विच आयन? विच एनायन लाइक Cl माइनस एंड ऑल्सो Na+. अब ये Cl माइनस और Na+ कहां जा रहे हैं? ल्यूमेन में जा रहे हैं. अब जितना ज्यादा दे विल जाएंगे तो दे विल होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल एज वेल. तो जितना ज्यादा जाएंगे वहां पे जो फीकल मैटर है उसको क्या करेंगे? लूज करेंगे एंड दैट इज अ कंडीशन लाइक पुअरली फॉर्म्ड स्टूल लाइक डायरिया. तो अभी आपने क्या करना है? आपको यह समझ जाना है कि जो भी हमारे डायरिया के कॉजेटिव एजेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव सिक्रीशन को बढ़ा रहे हैं और इस एक्टिव एब्जॉर्प्शन को इन द विलस सेल कम कर रहे हैं. बस ये आपकी फार्माकोलॉजिकल मैकेनिज्म है. सो ये आपका आई होप कि ये क्लियर हो गया. तो दिस इज क्रिप्ट सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिव सिक्रीशन एंड दिस इज विलस सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ल्यूमेन और ये दिस इज सिक्रीशन फ्रॉम द वेस्कुलर कंपार्टमेंट. नाउ अब कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने जरूरी हैं. Like in the small intestine there is a part called jejunum and the jejunum passively, यहां पे एनर्जी इंवॉल्व नहीं होगी, jejunum passively responsible for absorption of salt and water along with glucose and amino acid. तो सेकेंडरी टू ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, ये क्यों लिखा है? बट ऑब्वियसली बात है कि जिस तरह हम बता रहे हैं कि बिकॉज वन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम पैरेलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनसाइड अपटेक ऑफ ग्लूकोज, एक्टिवली एब्जॉर्प्शन मींस ये सिंपोर्ट है. अगर सोडियम आएगा तो पैरेलली ग्लूकोज भी आएगा. तो ये लाइन लिखिए कि ये कहां पे फ्रीली होता है? जेजुनम में. जेजुनम में ये फ्रीली होता है. ये आपकी बात समझ में पैसेली, इसमें कोई टेक्निकल कुछ ऐसा नहीं है. नाउ इलियम और कोलॉन जो पार्ट होते हैं, इलियम और कोलॉन जो पार्ट होते हैं फ्रॉम इन द जीआईटी, देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएच. एक्चुअली जो आपको चीजें मैं डिफाइन कर चुका हूं उन्हीं चीजों को लाइन बाय में कंसेप्चुअल और कर रहा हूं. तो इलियम एंड कोलॉन विच इज सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप, जैसे यहां सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप होगा था एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द ग्रेडियंट सो दैट देयर विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम अमाइनो एसिड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द ल्यूमेन. तो इलियम एंड कोलॉन हैव द सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप्स, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन होगा एंड वाटर क्या होगा उसके साथ? फॉलो होगा. दैट विल बी फॉलोज वाटर. तो ये जो मैकेनिज्म है ये ल्यूमेन से आपके किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट के लेने से. अब हमने ये ऑस्मोटिक लोडिंग में जब बात की थी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे अगर अनएब्जॉर्बल होंगे, अनएब्जॉर्बल का मतलब कि वो इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में ही होंगे और वो किसको ज्यादा से ज्यादा अपने पास होल्ड करेंगे क्योंकि वो ऑस्मोटिकली एक्टिव है, वाटर कंटेंट को. तो सेम बात यहीं पे लिखी है कि नॉन एब्जॉर्बेबल सॉल्यूट अगर हैं तो दे विल स्टार्ट इंक्रीज्ड H2O एक्सक्रीशन अलोंग विथ फीकल मैटर. वो कंडीशन भी आपकी बनेगी किसके लिए? डायरिया के लिए. अब आप दोनों को रिलेट कर पाएंगे. अब नाउ वी विल टॉक अबाउट
at micro level that what viruses and how it influences the mechanism of villus cell and Crypt cell that is responsible for diarrhea. So before discussing, first I would like to mention that there are certain condition, or you can say the secondary mediators that responsible for activation of these secretion and modulation of these absorptive cell function. How? Because once we secrete the cyclic AMP, साइक्लिक एमपी को अगर हम एडेनालाइज साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं तो एटीपी को किस में बनाता है? वो साइक्लिक एमपी में। और साइक्लिक एमपी क्या बनाता है? प्रोटीन काइनेजेस। और प्रोटीन काइनेजेस बनाता है क्या? कई प्रोटीन्स बनाता है, जिसमें एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है सीएफटीआर। वो सीएफटीआर किसको एक्टिवेट करेगी? सीएल माइनस के सिक्रीशन को। तो वो एक अपना अलग पार्ट है, लेकिन उस चीज को हमको इस तरीके से यहां पे समझना है कि सर्टेन सेकेंडरी मीडिएटर और यू कैन से द मैसेंजर लाइक साइक्लिक एमपी, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस टाइम क्रिप्ट सेल, सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन इन द ल्यूमेन, cyclic AMP, prostaglandin and calcium. The increased level of these ions, or you can say the secondary mediators, is responsible for active secretion of more and more secretion of chloride ion from inside to the lumen. अब जब इनसाइड से ल्यूमेन में ज्यादा होगा और उसको इंक्रीज करने का काम कौन कौन कर रहा है? साइक्लिक एमपी, प्रोस्टाग्लैंडिन और कैल्शियम। आपको ये चीज आनी चाहिए, यही आपकी कॉन्सेप्ट बनाएगी बाद में। तो साइक्लिक एमपी, कैल्शियम एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेटिंग द सिक्रीटिंग सेल दैट इज क्रिप्ट सेल। तो मोर एंड मोर आपका क्या होगा? बिकॉज दे विल होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद दैट। तो once the more and more electrolyte, anions and the positive ion like sodium, they will reach into the lumen as they are holding the water molecule as well, they will create a condition of poorly formed stool. तो वो क्या करेगा? डायरिया की कंडीशन बनेगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी मैं कुछ वायरसेस या बैक्टीरिया इस तरह से बताने वाला हूं जो हो सकता है कुछ वायरसेस साइक्लिक एमपी को बढ़ा के किस तरह से डायरिया काज कर रहे हैं। आप उसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म को आसानी से यहां से रिलेट कर सकते हो कि इस तरीके से क्रिप्ट सेल में वर्क करेंगे वो। किस तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन, कैल्शियम का रोल, जो अगर कुछ वायरसेस अगर प्रोस्टाग्लैंडिन और कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करके डायरिया कराते हैं तो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपकी मैकेनिज्म हो गई। इन अ सेम वे अगर साइक्लिक एमपी का लेवल हम डिक्रीज करते हैं, अगर हम क्या करते हैं? साइक्लिक लेवल के हम डिक्रीज करते हैं, तो डिक्रीज्ड साइक्लिक लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस आयन। डिक्रीज साइक्लिक, अगर हम साइक्लिक एमपी को यहां पे बढ़ा रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल है सिक्रीशन के लिए। अगर यहां पे हम उसको साइक्लिक एमपी के लेवल को कम कर रहे हैं तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एब्जॉर्प्शन की इनहिबिशन के लिए। अगर साइक्लिक एमपी का लेवल कम होगा, राइट, अगर साइक्लिक एमपी का लेवल कम होगा तो साइक्लिक एमपी के लेवल कम होने से वजह से किसका मॉड्यूलेशन होगा? एब्जॉर्प्शन का। ओवरऑल अगर आपको यहां पे कंसेप्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है तो आप इस तरीके से देखिए, आपको डायरिया की कंडीशन में एब्जॉर्प्शन को कम करना है और सिक्रीशन को बढ़ाना है। तो एब्जॉर्प्शन को कम करना है, इट मींस आप ये जो एब्जॉर्प्शन है इन एब्जॉर्प्शन को कम करेंगे। जब एब्जॉर्प्शन का कम करेंगे और सिक्रीशन बढ़ाएंगे, सिक्रीशन बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइक्लिक एमपी, ठीक है। अगर साइक्लिक एमपी हम यहां बढ़ाएंगे, ठीक, तो वो भी डायरिया लाइक कंडीशन बनेगी। तो साइक्लिक एमपी कम करने पे हम क्या बोलेंगे? यहां पे क्या होता है? इनहिबिशन होता है। मींस डिक्रीज इन मींस इंक्रीज्ड इन द साइक्लिक एमपी लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ दिस सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट। तो आप इस तरीके से इसको रिलेट कर लेंगे। अब हम बैक्टीरिया वायरसेस की बात करते हैं। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। रोटा वायरस क्या कर रहा है? रोटा वायरस जो कि आप ये मान के चलिए कि 90% पॉपुलेशन में, खासतौर से बच्चों में, 90% बच्चों में 5 साल की उम्र के पहले डायरिया की वजह 90% बच्चों में जो होता है रोटा वायरस होता है। रोटा वायरस अब क्या कर रहा है? उसमें टेक्निकल सोडियम पोटेशियम एटीपीएच पंप को ब्लॉक कर रहा है। ये पंप को ब्लॉक करेगा तो क्या इनका एब्जॉर्प्शन होगा? नहीं होगा। ये कहां पे रहेंगे? रिमेन ल्यूमेन में, वाटर के साथ क्या करेंगे? पुअरली फॉर्म्ड स्टूल, डायरिया नंबर 1। म्यूकोसल डैमेज भी करता है। अगर हम बात करें कॉलरा टॉक्सिन की, ई कोलाई की, साल्मोनेला की, इंक्रीज्ड बाइल कार्सिनॉइड, तो ये तो आपके बैक्टीरिया इंड्यूस हैं, ई कोलाई, साल्मोनेला, इंटेरियर टॉक्सिन। ओवरऑल ये कर क्या रहे हैं?
एंडाइल साइक्लेज और साइक्लिक एमपी के लेवल को बढ़ा रहे हैं। साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ाने से क्या हुआ था, सिक्रीशन हुआ था, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिक्रीशन। तो आप कोलेरा टॉक्सिन इकोलाई साल्मोनेला में की मैकेनिज्म आप समझ सकते हो कि सिक्रीशन को कैसे इनहांस कर रहा है Cl माइनस के, ठीक, साइक्लिक एमपी के थ्रू। अब यहां पे लिखा है कि दो कंडीशन और है, लाइक बाइल और कार्सिनॉइड। एक्चुअली बाइल का लेवल अगर फीकल मैटर पे ज्यादा होगा, बाइल का एब्जॉर्प्शन कम होगा जीआईटी के ल्यूमेन में, और बाइल का अगर प्रेजेंस फीकल मैटर में ज्यादा होगा तो बाइल एक तरीके से ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्मोटिकली एक्टिव कंपाउंड अपने साथ क्या होल्ड करेंगे, वाटर। तो जितना ज्यादा वाटर होल्ड करेंगे उतना ज्यादा पुअरली फॉर्म्ड स्टूल होगा। तो इस तरीके से इंक्रीज लेवल ऑफ बाइल इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डायरिया, और जो मैकेनिज्म इसकी होगी वो साइक्लिक एमपी सिक्रीशन के थ्रू होगा क्रिप्ट सेल में। इन अ सेम वे कार्सिनॉइड, कार्सिनॉइड क्या होता है, कार्सिनॉइड में अगर हम बात करें स्पेशली जीआईटी में, तो लाइक आपकी इलियम में हो गया, स्टमक में हो गया, तो इसमें हम ट्यूमर की बात करते हैं। तो इसमें जो जीआईटी में जो ट्यूमर फॉर्मेशन होता है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है कई बार कुछ न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज के लिए, लोकलाइज न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज के लिए। तो बेसिकली कार्सिनॉइड ट्यूमर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ सीरोटोनिन, एंड सीरोटोनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मींस हाइपर मोटिलिटी। सो बाई activating the secretion and by increasing the hypermotility they are also responsible for diarrhea like carcinoid like condition. So I hope कि ये clear होगा. Now as we have discussed the prostaglandin and the calcium, prostaglandin and the intracellular calcium also stimulate secretory process, ये भी हमारा point clear है. Second हम बात करेंगे कुछ बैक्टीरियाज की जो कि वर्क तो इसी तरह करते हैं लेकिन साइक्लिक एमपी को ना करके वो साइक्लिक जीएमपी को करते हैं, जो कि साइक्लिक एएमपी से थोड़ा उसकी इंटेंसिटी स्लो होती है. तो ई कोलाई की अगर हम बात करें, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल की बात करें या एंटेमीबा हिस्टोलिटिका की, they stimulate the condition like diarrhea by stimulating the cyclic GMP, not for cyclic AMP. So they increase the cyclic GMP that is less potent from cyclic AMP. तो साइक्लिक एमपी क्या करता है, अब ये क्या करेंगे, साइक्लिक जीएमपी भी सेम उसी तरह करेगा, एनायन के सिक्रीशन को बढ़ाएगा. एनायन में मेनली हम बात करेंगे Cl माइनस की, और केटाइन की हम बात करेंगे कि एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है, इट मींस हम बात करेंगे सोडियम की एब्जॉर्प्शन की, या हम कह सकते हैं सोडियम की सिक्रीशन की. सो आई होप कि दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायरिया. डायरिया ऐसा नहीं है कि आप डायरिया में बस हो क्या रहा है, पुअरली फॉर्म्ड स्टूल, आपने इसको पढ़ लिया. आपको उसके कॉन्सेप्ट्स की पैथोफिजियोलॉजी, किस तरह ल्यूमेन की मैकेनिज्म, इन्फ्लामेशन, बैक्टीरिया वायरस मॉलिक्यूलर लेवल पे कहां पे वर्क कर रहे हैं, आपको वो चीज बीइंग अ फार्माकोलॉजिस्ट आपको पता होनी चाहिए. तो ये सारी चीज जो नाउ वी हैव अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ डायरिया, वी हैव टॉक्ड अबाउट पैथोलॉजिकल रीजन, वी हैव डिस्कस्ड द रेलेवेंट पैथोफिजियोलॉजी, हाउ द क्रिप्ट सेल एंड द विलस सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉड्यूलेटिंग द फंक्शन ऑफ स्टूल फॉर्मेशन, and what are the role of jejunum, ileum, rotavirus, how does it created the problem of diarrhea. We have discussed a lot of bacteria and viruses responsible for how they modulate the specific mechanism which is responsible for diarrhea. तो आई होप कि ये जो पार्ट है, चूंकि डायरिया के पार्ट को पहले तो मैंने सोचा कि ये एक वीडियो में ही कंफर्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि डायरिया भी अपने आप में फार्माकोलॉजिकल कोई भी चीज अगर आप उसको कंसेप्चुअल पढ़ते हैं तो नो डाउट आपको उसकी डेप्थ में जाके डिटेल पढ़ना होगा, और वो कंटेंट बच्चों को पूरा समझ में आए उसके लिए मेरे को ये 2 वीडियो बनाना ही पड़ा. तो कोई बात नहीं, इसमें हम डायरिया को 2 पार्ट में पढ़ेंगे. तो आपको आई होप कि ये पार्ट समझ में आया होगा और पूरा आपका क्लियर होगा. आप इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट आपको समझ में आता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू वेरी मच.